सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस्तकबाल करने में आज तमाम बच्चे भी तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। तो मेरे बाएं हाथ पे जो बैठे हुए हैं डॉक्टर मुनव्वर आलम साहब हैं। सत्यम स्कूल का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके आप डीन हैं और आपने अभी रिसेंटली 2 बच्चों की पीएचडी मुकम्मल करवाई है। मतलब है कि आपके सुपरविजन में उनकी पीएचडी मुकम्मल हुई है। आप दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और न जाने कितने ऐसे इदारों में काम किया है और आप जैसे और हम जैसे न जाने कितने नौजवानों को पढ़ाया है। तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप तालियों से इस्तकबाल करें। Good afternoon, everyone. Distinguished guests, parents, esteemed organizers, and most importantly, you, the young children participants. It is an absolute honor to be here today as the chief guest for the prize distribution ceremony of the 6-day multimedia summer camp, organized by Hamari Sada Trust at the Rising Skill Development Center, RSDC. Let me begin by extending my heartfelt appreciation to the Trust, its founder and General Secretary, Mohammad Irshad Ahmed Sir, and his dedicated team, and Dr. Halima Sadia for putting together such a vibrant and purposeful camp. Over the past 6 days, our young participants, means you children, have immersed yourselves in the world of video editing, anchoring, photography, and many other key multimedia skills, truly equipping yourselves for the creative and digital age we are living in. As Nelson Mandela has wisely said, the greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time whenever we fail. Fail karna is the pillar of success. I am confident that the challenges and learning moments during this camp have made each of you stronger, more capable, and more inspired. Today marks the culmination of this exciting journey, and I am deeply privileged to celebrate your efforts and achievements. You have not just attended sessions, you have created, collaborated, and explored your creativity, laying the foundation for a bright future in the multimedia landscape. To all the young creators, you students here, remember this is just the beginning. Keep building on what you have learned. Nurture your passions. Be bold in your creativity and continue striving for excellence. As Swami Vivekananda has said, arise, awake, and stop not until the goal is achieved. My warmest congratulations go out to the top performers. Your dedication and perseverance have paid off, and you should be proud of, and your parents should be proud of what you have achieved here. But let me remind everyone, every one of you who participated has taken a meaningful step forward in your life. To the organizers and facilitators, my sincere appreciation for your tireless efforts and unwavering commitment to empowering young minds through such innovative and practical education. In conclusion, I wish each of you success is your creative journey. May the skills and experiences gained at this RSDC Multimedia Summer Camp serve as a strong launchpad toward your dreams in your lives. It is now my pleasure to distribute the awards to the best performers. Congratulations once again, and thank you for giving me the opportunity to be a part of this inspiring initiative. प्यारे बच्चों, अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूं कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं। आप शहर में हैं और मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली में हैं।
ओके, मेरी पैदाइश झारखंड के एक पहाड़ी गांव में हुई और मेरी पढ़ाई एक छप्पर वाली स्कूल में, हिंदी माध्यम स्कूल में हुई 7वीं क्लास तक। उसके बाद उर्दू मीडियम में हमसे हमारी पढ़ाई 11वीं क्लास तक हुई, जो हर एक सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाई जाती थी। जैसे मैथमेटिक्स को इल्म मसाहत कहते हैं, फिजिक्स को इल्म तबीयात कहते हैं, केमिस्ट्री को, रसायन शास्त्र को इल्म कीमिया कहते हैं। ये सारी पढ़ाई उर्दू में हुई। उसके बाद जब मेरा दाखिला इंग्लिश मीडियम में इंटरमीडिएट साइंस में हुआ, तो जो प्रोफेसर बोलते थे इंग्लिश में वो बाउंसर की तरह होता था, कुछ समझ में नहीं आता था प्रोफेसर क्या बोल रहा है। जैसे एक मिसाल मैं बताता हूं अपनी बेवकूफ़ी की, कि प्रिंसिपल ने जब पूछा कि तुमने फॉर्म भर दिया, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, फॉर्म भर दिया। मैंने सोचा ये फॉर्म है कोई चीज़। मैं घर जाके बोला कि प्रिंसिपल ने हमें कहा है फॉर्म भरने को, ये क्या होता है? अरे बेटा ये फॉर्म नहीं, ये फार्म है, फार्म भरने कह रहे हैं। चूंकि हम लोग बोलते थे कि भाई फार्म भरा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका असल उच्चारण क्या है? राइट। तो हमें पहला सबक मिला कि भाई अरे इसको फॉर्म बोला जाता है, तो क्या सही है उसे जानना जरूरी है। फिर उसके बाद कितनी मेहनत हमने की होगी कि जब पीजी में मेरा मैनेजमेंट में सेंट जेवियर्स रांची में, जहां आपने सुना होगा MS धोनी का नाम सुना होगा, क्रिकेटर, वो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, तो धोनी का एडमिशन भी हमारे जूनियर के रूप में बाद में हुआ, ठीक है। तो वहां जब हम लोगों का दाखिला हुआ तो 4 स्टूडेंट्स को खड़ा किया गया, रोल नंबर 53, तो मेरा 53 था, मैं खड़ा हो गया। इसी तरह 4 बंदे, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की थी, ये खड़ा हो गया। कहा गया कि इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, तो जोरदार तालियां बजी। तो हमने समझा नहीं कि ये तालियां क्यों बजाई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 4 बंदे जो खड़े हैं उनको देखिए आप लोग। तो जब हमें सब लोग ताकने लगे तो हम और बेवकूफ़ बन गए कि भाई ये सब देख रहे हैं क्यों हमें। तो बोला कि ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की है और ऑल इंडिया लेवल पर टक्कर देकर कॉम्पीट करके आपके बीच में खड़ा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है। उसके बाद तालियां गड़गड़ाने लगी। तो ये हमें हासिल हुआ। मेरा जिंदगी का मकसद था कि मुझे एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर बनना है और अपने देश के घर घर में पहुंचना है, अच्छा संदेश लेकर, ठीक है, हर एक घर में अच्छा संदेश पहुंचाना है अपने देश में। तो ये माध्यम कैसे हो सकता है, कहां जा सकता हूं मैं? मेरे फादर असिस्टेंट टीचर थे, 8 भाई बहन में हम सबसे बड़े थे, तो घर में इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि हम बड़े शहर में दिल्ली में आके पढ़ सकते थे या इनके पटना में जाके पढ़ सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़े मसाइल थे। लेकिन अगर पक्का इरादा हो, जिसको 3D कहते हैं इंग्लिश में, कि पहला D डिटर्मिनेशन, ठीक है, और उसके बाद हो डेडिकेशन, और उसके बाद हो डिवोशन, तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ठीक है। दाने को पेड़ बनने के लिए मिट्टी में दफन होना पड़ता है, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ बनता है और तब जाकर उसमें फल आते हैं, पत्ते आते हैं और दुनिया को ऑक्सीजन मिलता है। हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम पेड़ पौधों पे मेहरबान नहीं है और वो हम पे बहुत मेहरबान है, ठीक है। तो 2-3 बातें मैं करूंगा आपसे और खत्म करूंगा। पहली बात ये चीज है कि जब भी नए बच्चों से मेरी मुलाकात होती है, मैं कहता हूं बच्चों ऐसा है कि तुम्हें अगर तरक्की करनी है, तुम्हें कुछ बनना है और माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, माँ बाप का नाम नीचा नहीं करना है। माँ बाप सर झुका लें आपकी वजह से तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे वजह से देश का नाम ऊंचा हो, हमारे राज्य का नाम ऊंचा हो, हमारे गांव का नाम ऊंचा हो, हमारे खानदान का नाम ऊंचा हो, हमारा काम ऐसा हो कि हमारे माँ बाप का नाम ऊंचा हो, और सिर्फ ऊंचा नहीं हो बल्कि माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं तो सदक़े जारिया हो, जैसे ऐसा काम हो जिसकी नेकी बढ़ती रहे, फैलती रहे। जैसे मेरे लगाए हुए पेड़ हैं हॉस्टल में जो आज भी फल दे रहे हैं,
मैं जिस स्कूल में गया हूं वहां पर पेड़ लगाया हूं, तो वहां बच्चे आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं। मेरे लगाए हुए बीसियों पेड़ हैं जो अभी लोगों को छाया दे रहे और लोगों को फल दे रहे। स्टूडेंट्स की बात तो मैं बाद में करूंगा। तो पहली चीज क्या है माय डियर, कि 4 चीजों में आपको सिलेक्टिव रहना है। सिलेक्टिव किसको कहते हैं? आप टमाटर खरीदते हो, सेब खरीदते हो तो चुनते हो, है ना? चुनते हो कि नहीं कि भाई साफ सुथरा कौन सा है और बढ़िया पीस कौन सा है, वो लेते हो आप। ठीक है, आप सिलेक्ट करते हो, क्यों पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि आपको सिलेक्टिव होना चाहिए लाइफ में। ये क्यों है कि एक शेर है, बस एक कदम चले थे गलत राह शौक में, बस एक कदम चले थे गलत राह शौक में, और मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। ठीक है, जैसे प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। ठीक है, तो पहली चीज है कि आपको सिलेक्टिव रहना है लाइफ में अगर कुछ बनना है। पहली चीज है आपका कॉन्टैक्ट, यानी किससे दोस्ती कर रहे हैं आप। ये दोस्ती फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं आप। मेरे पापा बहुत चौकन्ने रहते थे, स्कूल में क्या पढ़े नहीं पढ़े, इससे ज्यादा वो अलर्ट रहते थे कि मेरा बेटा किसके साथ उठता बैठता है, मेरी बेटी किसके साथ उठती बैठती है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, आप किसको दोस्त बना रहे हो। मैं एक मिसाल पेश करता हूं आपको। गंगा जल सुना होगा आपने, तमाम हिंदुओं के लिए पवित्र जल माना जाता है, और आब ज़मज़म तमाम मुसलमानों का अकीदत है कि उससे बेहतरीन पानी दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिस नीयत से उसे पिया जाए वो नीयत पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर आब ज़मज़म का बोतल ले लिया जाए या गिलास ले लिया जाए तो सब उसका आदर करते हैं, गंगा जल का आदर करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उस पूरे बर्तन में या बोतल में गंदे नाली का एक कतरा टपका दिया जाए, या पेशाब का एक कतरा उसमें टपका दिया जाए, तो अब आप बताइए कि उसको कौन पिएगा, उस गंगा जल को या उस आबे ज़मज़म को कौन पिएगा माय डियर। तो आप आबे ज़मज़म हो, तालियां बजाओ, आप आबे ज़मज़म हो और आप गंगा जल हो। ठीक है, आप कभी भी अपने गलत सोहबत में, गलत कॉन्टैक्ट से कब तुम्हारे अंदर गंदी बात घुस जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कॉन्टैक्ट में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, किससे दोस्ती कर रहे हैं। इरशाद साहब हमारे एमए मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एमए इस्लामिक स्टडीज में हमारे साथ हम लोग क्लास फेलो हैं, तो ये तब से मेरे दोस्त हैं, तो हजारों में ये एक है। मैं 25 साल से रहता हूं अबुल फजल में, लेकिन मैं गिन के बता सकता हूं कौन मेरे दोस्त हैं। तो मैं बहुत सिलेक्टिव हूं, सबसे दुआ सलाम रखता हूं, लेकिन किसी का असर बड़ी मुश्किल से मैं कबूल करता हूं। क्या पता कहीं से गंदगी ना आ जाए, इंटरनेट के माध्यम से ना आ जाए, फेसबुक के माध्यम से आ जाए, इंस्टाग्राम से आ जाए। तो आप किसको दोस्त बनाते हैं आप पूरी लाइफ में, आप बहुत अलर्ट रहिए। आपको 4 चीजों में सिलेक्टिव रहना है, यानी बहुत सोच समझ के ये 4 काम करने हैं। पहला है दोस्ती। A man is judged by his contacts। आजकल जो इंटरव्यू हो रहा है, जो एप्लीकेशन दी जाती है कंपनी में, राइट, तो आपके नाम से आपके फेसबुक अकाउंट को ढूंढा जाता है, और ये ढूंढा जाता है कि कौन कौन आपके दोस्त हैं और कैसे लोग आपके दोस्त हैं। अगर गंदे लोग आपके दोस्त होंगे तो आप वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे, समझ गए। फेसबुक जब पैदा हुआ, फेसबुक किसने लॉन्च किया था मालूम है आपको? वेरी गुड। जब से ये लॉन्च हुआ तब से मैं फेसबुक में हूं। कितने होंगे मेरे दोस्त, अंदाजा लगाइए। 500-600, 5-6 हजार। मेरे दोस्तों की तादाद लगभग 56 है।
कितने साल में? 56 ओनली। बस आप इसे समझ लीजिए। दूसरी चीज है सिलेक्टिव, आपको होना है रेफरेंस। आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं मोबाइल पर, इंटरनेट पर, ठीक है? आप क्या पढ़ते हैं, रेफरेंस इसको बोलते हैं। किताबें हजार हैं जो बर्बाद करती हैं, चैनल हजार हैं जो बर्बाद करते हैं, इंटरनेट के साइट्स हजार हैं जो बर्बाद करते हैं। तो आप जो है खिलते हुए फूल हैं, अभी पूरी तरह से फूल खिला भी नहीं है, ठीक है? तो फूल में अगर जहर डाल दिया जाए, एसिड डाल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप में, आपके कान में गलत चीजें डाल दी जाए, गलत कंटेंट पढ़ेंगे आप, तो आपका माथा भ्रष्ट हो जाएगा, आपका किरदार, कैरेक्टर भ्रष्ट हो जाएगा। अपने आप को भ्रष्ट होने से बचाइएगा। कौन सी किताब पढ़ें, कौन से चैनल में जाएं, कौन से साइट हम देखें और कौन सा ना देखें, उसमें एकदम सिलेक्टिव होना चाहिए। समझ रहे हैं? आलतू फालतू किताब नहीं पढ़नी चाहिए। उस्ताद से पूछना चाहिए कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है। इंग्लिश ग्रामर में कौन सी किताब पढ़ी जाती है, बेस्ट ग्रामर बुक कौन सी है, उर्दू में कौन सी है, हिंदी में व्याकरण कौन सा अच्छा है, आपको मालूम होना चाहिए। आपको नहीं मालूम है, टीचर से पूछिए बेस्ट बुक कौन सी है। और जूते चप्पल और कपड़ों में पैसे लगाने के बजाय ज्यादातर पैसे किताबों में लगाए। समझ गए? आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आप किताबें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं, आपको सिलेक्टिव रहना है कि क्या नहीं पढ़ना है। और तीसरी चीज है क्या पहनना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। आपको साफ सुथरा रहना है। फिल्मों में एक एक्टर होता है, एक विलेन होता है। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि आप एक्टर लग रहे हैं कि विलेन लग रहे हैं। आपका हेयर स्टाइल कैसा है? हम लोग का हेयर स्टाइल नहीं है, तो बाल उड़ चुके हैं, ठीक है? अभी मैंने गंजा कराया था तो अभी बाल आ रहे हैं। एनीवे, तो आपकी जुल्फे बता देंगी कि आप किस सोच के आदमी हैं। आपका ड्रेस बता देगा कि आप किस सोच के आदमी हैं। समझ गए? तो इसलिए ड्रेस ऐसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ घर में होता था कि अगर अपनी दादी के पास जाए रंगीन कपड़े पहनकर, तो हमें कहती थी जा रे यहां से जा, तू मेरे खानदान का नहीं लग रहा। और जब मैं कभी व्हाइट शर्ट पहन के जाता था तो हाँ बेटा बैठो, कहाँ की तैयारी है। और अपने तकिए के नीचे से 2 रुपए निकालती थी उस जमाने में और वो देती थी, जाओ बेटा जाओ, इसे मिठाई खा लेना। तो आप ड्रेस साफ सुथरा पहनिए। आपके शूज, आपका हेयर स्टाइल, आपका कॉस्ट्यूम रिफ्लेक्ट्स अबाउट यू, ठीक है? कौन सा कलर आपको, आपकी बॉडी को सूट करता है, ठीक है? आपका कलर है, कौन सा कलर आपको सूट करता है, ये आपको जानना चाहिए। और फोर्थ चीज है आपकी फूड हैबिट। अभी बिल्कुल बच्चे हैं आप, 40 साल के बाद बिल्कुल मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। हम भी आपकी तरह स्मार्ट थे आपके दौर में, ठीक है? और अब हम 64 के हैं, ठीक है? हमसे जूनियर बूढ़े हो गए। मैं आज भी साफ सुथरा रहता हूं और डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं। 9 से 5 कॉलेज में रहता हूं। तो आप ये 4 आदतें, इसमें सिलेक्टिव रहना है आपको। पहला हो गया कॉन्टैक्ट, किससे दोस्ती करनी है। हमारे देहात में बोलते हैं पानी पिए छान के और दोस्ती करे पहचान के। पानी पिए छान के और दोस्ती करे पहचान के। पहचान कैसे होती है? एक मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, वहां पर एक गवाह आया, ठीक है? जैसे मैं इनका गवाह बन के आया, तो जज ने पूछा इनसे कि ये गवाह कहां से उठा के लाए, ये आपके पड़ोसी है? तो इन्होंने कहा नहीं मेरे पड़ोसी नहीं है। अच्छा, तो इनके साथ कहीं यात्रा की है आपने, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, पैदल? तो नहीं सर, यात्रा नहीं की है कहीं। अच्छा, तो कभी कोई कारोबार किया है, कोई लेन देन किया है? नहीं, लेन देन नहीं किया है। तो इसको कहां देखा? मस्जिद में, मंदिर में,
गुरुद्वारे में, चर्च में, कहां देखा? हाँ देखता हूं इनको मस्जिद में जुम्मे के रोज ये मिलते हैं और मंगलवार को मंदिर में मिलते हैं, मंगलवार को पूजा होती है। ठीक है, तो बोलता है जज कि ले जाओ अपना गवाह, तुम इनको पहचानते नहीं। आदमी को पहचानने के ये 4 मानदंड है। ठीक है, उसके पड़ोसियों से, जैसे शादी ब्याह लगती है लड़कियों की या लड़कों की, तो पड़ोसियों से मालूम किया जाता है कि ये कैसे लोग हैं। डॉक्टर आलम अगर कह दे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, आप मेरे पड़ोसियों से पूछिए, वो कह देंगे डॉक्टर आलम महा बेकार आदमी है, ये दिन रात इनके यहाँ शोर होता रहता है, ये लड़ाइयां करते रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि हम सही आदमी नहीं है, चाहे अपना जितना भी राग अलाप लें। पड़ोसी ज्यादा जानते हैं आदमी के बारे में। ठीक है, तो पड़ोसियों से मालूम होता है कि आप अच्छे खराब है। और दूसरी चीज है कि अगर आदमी को पहचानना है तो उसके साथ यात्रा कीजिए, सफर कीजिए, तो आपको मालूम होगा वो कितना सेल्फिश है। और थर्ड चीज है, उसके साथ लेन देन कीजिए। लेने के वक्त तो वो जल्दी जल्दी आपसे पैसा खिसकाएगा, उसको लेना है, लेकिन पैसा लेने के बाद वो कन्नी काट के भागेगा कि अरे देना पड़ेगा। जब आपकी नजर सामने आ जाएगी भाग जाएगा वो। तो पहचान लीजिए वो कैसा आदमी होगा। समझ में आ रही बात? तो किसी के मस्जिद जाने से या मंदिर जाने से या गुरुद्वारा जाने से आप धोखे में मत आइएगा। आप आदमी को पहचान के दोस्ती कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक दो और बातें बता के बात खत्म करना चाहता हूं। दुनिया में सीखने के 3 मंत्र हैं। ठीक है, आपने वर्कशॉप किया है, हमने अपनी लाइफ में 50 वर्कशॉप किए, नोएडा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में। ठीक है, हमने वर्कशॉप से अपना करियर शुरू किया था। उससे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में न्यूज एंकर रहा हूं। मैं टेलीविजन पे 17 साल मैंने पढ़ी है, राइट, और ऑल इंडिया रेडियो पर 22 साल हमने लाइव पढ़ी है। और मैं 3 सब्जेक्ट में एमए हूं। एक तो इनके साथ एमए हूं इस्लामिक स्टडीज में, फिर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, और उसके बाद सोशल सर्विस में, और मैं मास कॉम में पीएचडी हूं। तो 3 मंत्र बोल के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिंदगी में सीखने का, आगे बढ़ने का 3 मंत्र है। पहला मंत्र है सीखो। तुम्हें सीखना है, इसके लिए तुम्हें, अब जैसे नाली में सोने का सिक्का गिर जाए और गंदा पानी बह रहा है, तो आप क्या कहिएगा कि अरे गंदा पानी है, छोड़ो इस सिक्के को। क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? अच्छा, ये पिन्नी पहन के, ये हमसे ज्यादा चतुर है। वेरी गुड, वेरी गुड। पिन्नी पहन के निकाल लेंगे। अगर पिन्नी सामने ना हो और कहीं बह जाए तो क्या करेंगे? हाथ धो लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे? निकालेंगे, उसको भी साफ करेंगे और अपना हाथ भी कई बार साबुन से धो लेंगे। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, आज जहां बेचकर भी जो इल्मो हुनर मिले, जहां से मिले, जिससे मिले, जिस कदर मिले, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का हाथ थामना पड़ता है। ठीक है भाई, गुरु ब्रह्मा कहा जाता है हिंदू शास्त्रों में, और हमारे इस्लाम मजहब में भी उस्ताद को बहुत बड़ा मर्तबा हासिल है। माँ बाप के बाद में दर्जा उस्ताद का होता है। ठीक है, तो आप पहले सीखो, ये मंत्र है, सीखो, चाहे जो करना पड़े। ठीक है, हर वो जायज तरीका इख्तियार करो, जायज तरीका इस्तेमाल करो जिससे तुम सीख सकते हो। मैं आपको बताऊं, पूरी हाई स्कूल 11वीं क्लास तक मैं पैदल, पैंट शर्ट नहीं, पैजामा कमीज और हवाई चप्पल, और ये बैग नहीं, झोला। हमारे पास झोला में किताब होती थी। बिल्कुल देहाती आदमी हूं मैं, डोंट कंफ्यूज। समझ गए? तो पहले सीखना है आपको, ये मंत्र है। और दूसरा मंत्र है रोल मॉडल को फॉलो करो। जो आज की सोसाइटी में, दुनिया में रोल मॉडल है, आप जो बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर का बढ़िया टीचर कौन है उसको फॉलो करो। एंकर बनना है तो बढ़िया टॉप क्लास के जो एंकर्स हैं उनको फॉलो करो। आप यकीन मानेंगे कि सुबह दोपहर शाम हमने 6-7 साल रेगुलर लिसनिंग की थी मैंने। और मुझे जब ऑल इंडिया रेडियो का इंटरव्यू हुआ था, पूछा गया था कि आलम साहब ये बताइए आपको क्यों लिया जाए, आप में ऐसा क्या है
कि आपको हम ऑल इंडिया रेडियो में ले लें, तो मैं थोड़ी देर चुप रहा। क्या बोला जाए भाई? हाँ बोलिए बोलिए, घबराइए नहीं, बोलिए। तो तब भी मैं चुप था। एक वर्मा साहब थे एडिटर, उन्होंने कहा कि आलम साहब घबराइए नहीं, जो मन में आता है बोलिए आप। मैंने कहा सर मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मैं यही जानता हूं कि आई एम अ डिसिप्लिन्ड लिसनर ऑफ रेडियो, आई एम अ डेडिकेटेड लिसनर ऑफ रेडियो, और मैं पहले लिसनर हूं, क्योंकि मैंने टाटा कंपनी के एक मैगजीन में पढ़ा था, वन हु इज नॉट अ गुड लिसनर कांट बिकम गुड ऑरेटर। अल्लाह ने दो कान दिए और एक मुंह दिए। दो कान क्यों दे दिए? बेवकूफ है अल्लाह क्या? इस कान के तीन काम हैं। कान से सुनना होता है, कान में तेल डाला जाता है, और कान में दवा डाली जाती है। और क्या काम है बताइए कान का? और मुंह का काम क्या है? बोलना, पढ़ना, खाना, उगलना, निगलना, चखना, दांत से काटना, आवाज लगाना। इसके लगभग 5-7 काम हैं। और अगर नाक बंद हो जाए तो मुंह से सांस लेना, ये भी काम है ना। तो मुंह के इतने काम हैं, और ईश्वर ने एक ही मुंह दिया, और कान के कोई काम नहीं है ज्यादा। अरे तेल थोड़ी लगाता है रोज आदमी, दवा थोड़ी लगाता है रोज आदमी, और दो दो दे दिए कान। एक ही काम है इसका, सुनने का काम है, जबकि इसके 7 काम है और ये एक ही मुंह दे रखा है। इसका मतलब गलती हो गई अल्लाह से। इसके अंदर फलसफा है कि आप बोलो उससे डबल सुनो, ज्यादा सुना करो, और सुना करो फिर सोचा करो, तब बोला करो। हाँ, और एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। हियरिंग का मतलब इधर से सुन के इधर से उड़ा देना, और लिसनिंग का मतलब है गौर से सुनना। ठीक है? तो लिसन करो, लिसनिंग करो। जो आदमी अच्छा लिसनर नहीं है वो कभी भी बढ़िया कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। तो पहला मंत्र मैंने बताया सीखो, और दूसरा मैंने बताया रोल मॉडल को फॉलो करो। आप मेट्रो चढ़ते हैं ना, चढ़ा होगा मेट्रो में, तो मेट्रो में एक मर्द बोलता है, एक औरत बोलती है ना इंग्लिश में, वो हमारे सीनियर फ्रेंड है, समझ गए? दूरदर्शन में वो इंग्लिश के एंकर रह चुके हैं। जो मर्द बोलता है उनका नाम है शमी नारंग, ठीक है? और जो लेडी बोलती है उनका नाम है रिनी खन्ना। पहले वो रिनी साइमन क्रिश्चियन थी, बाद में एक पंजाबी से शादी हो गई, तो रिनी खन्ना बन गई, जो मेट्रो में आवाजें सुनती हैं। ठीक है? तो वो रोल मॉडल है आपके। जो बड़े बड़े एंकर है, उस्ताद बता देंगे आपको किसको फॉलो करो। 2 बातें मैंने बता दी आपको। पहला है सीखो। बस जहां बेचकर भी जो इल्म हुनर मिले, जहां से मिले, जिससे मिले, जिस कदर मिले। हदीसों में आता है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ, ठीक है ना? तो इल्म हासिल करने के लिए ये बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई हम बेटी हैं या हम औरत हैं, हम नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? पक्का इरादा होना चाहिए, इंशाल्लाह रास्ते निकल आते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां राह है, अल्लाह रास्ता निकाल देता है। जैसे पानी बहता है तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो पहली चीज मैंने कहा कि आपको सीखो, ये मंत्र बना लो कि भाई मुझे सीखना है। दूसरी चीज रोल मॉडल को फॉलो करना है, बाकी को नहीं फॉलो करना है। कोई अनाप शनाप बोलता है, गाली गलौज की भाषा बोलता है, आपको नहीं बोलना है। कितने लाख में गुस्से में आ जाऊं, मेरे मुंह से गाली नहीं निकल सकती, सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हमारी फैमिली में गाली चलती ही नहीं है। तो आपको ऐसा सर्कल बनाना है। भाई बच्चे क्यों गाली बोलते हैं बताइए तो आप मुझे। बच्चे किस किताब में पढ़ते हैं गाली, किस वीडियो में सीखते हैं गाली? इसी समाज में सुनते हैं वो। तो आपको ऐसा समाज ढूंढना है, बनाना है। समाज ऐसा मिलता नहीं है, समाज बनाया जाता है। समझ में आई बात?
आप ये सोच लीजिए कि पहले मैं किसी को गाली की जबान में बात नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। समझ में आई बात? इस पे बहुत सारी बातें हैं और कहानियां भी है, मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। तो 2 मंत्र मैंने बताए आपको, सीखना है, रोल मॉडल को फॉलो करना है। जैसे कोई एक्टर बनना चाहता है, शाहरुख खान के बारे आपको मालूम होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वो पढ़ रहे थे और अटेंडेंस कम होने की वजह से उनका नाम कट गया, ठीक है। और बताया जाता है कि गोलचा सिनेमा है दरियागंज में, एक फिल्म को उन्होंने 50 बार देखी थी। एक पागल है क्या, 50 बार देखने का क्या मतलब है यार? इसकी कहानी जानते हो, इसके एक्टर को जानते हो, इस एक एक प्लॉट को जानते हो, सब कुछ जानते हो, फिर क्यों देख रहे हो? तो शाहरुख खान वॉज एब्जॉर्बिंग एवरी एक्शन, एवरी एक्टिंग, एवरी बॉडी लैंग्वेज, एवरी प्रोनाउंसिएशन। तो अब जैसे मेरे जैसा आदमी जो देहात में रहता है, ना वहां सिनेमा हॉल है ना टीवी है, और मैं मुस्लिम फैमिली में से आता हूं, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली रही है मेरी। जब मैं टीवी पर आया तो 8 साल मेरे घर में टीवी नहीं थी, मेरे घर में कोई नहीं देखता था मुझे। दूसरे लोग बताते थे मम्मी को कि आपके बेटे को देखा आज टीवी पर, ठीक है। एनीवे, तो तीसरा मंत्र है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप सब कुछ सीख गए, सब कुछ जान गए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते आप। नो प्रैक्टिस, नो मेहनत, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बगैर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम जो है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, मेरा सिंपल फर्स्ट डिवीजन आता था, मैं सेकंड डिवीजन नहीं होता था मैं तो, लेकिन एकदम टॉपर हम नहीं थे, लेकिन मेहनती बहुत थे। जिस चीज को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ठीक है। और उसमें मेरी माँ का भी रोल है, ठीक है। माँ देखती थी किसके साथ उठता बैठता है, क्या पढ़ रहा है, वो किताब के अंदर देखती थी। तो एक किताब के अंदर से दरूद निकल आया, 500 बार पढ़ना रात को बत्ती बुझा के। तो मैं अपने कमरे में 500 की तस्वीर दरूद शरीफ की मैं पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि किसने इसको पढ़ा दिया भाई इस तरह से? तो मेरे पापा को उन्होंने बताया, फिर उन्होंने चेक किया, मेरी मम्मी ने देखा वो दरूद, ठीक है। तो बोले इसको कोर्स की किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए आप, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें मैं करता था, वो फिर बाद में हमने रोक दी। तो प्रैक्टिस कीजिए, जो सीखा है यहाँ पर और जो आगे सीखेंगे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। लिखने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, हर तरह की प्रैक्टिस। खिलाड़ी हैं तो खेल की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई सवाल है आप लोग का? एनी क्वेश्चन? ठीक है भाई, मैं यही खत्म करता हूं इस दुआ के साथ। थैंक यू सो मच। सर ने जो चीज़ें बताई हैं क्या इम्पोर्टेंट है आपके करियर को बनाने में के लिए, तो ये वो बातें हैं जिसे आपको गांठ बांधनी होगी अगर आपको कामयाबी की राह पे चलना है। ये पूरा सेशन जो हुआ 6 दिन में हर एक दिन का हर एक टूल वो आपको हमेशा एक्टिव रखेगा, हमेशा नई चीज़ों को सीखने की ललक पैदा करेगा। अब ये है वो ललक आप में कितना जिंदा रहती है ये आप खुद करेंगे, उसके लिए हम या कोई दूसरा या कोई तीसरा वो नहीं कर सकता। आप कितना इच्छा जताते हैं वो आप पे निर्भर करता है। तो हमारी कोशिश थी कि 6 दिनों में हम उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें आपसे जो इंसान की पर्सनालिटी को बदल देता है, जो इंसान की पर्सनालिटी को एक अलग रुख देता है, जो इंसान की पर्सनालिटी को एक नई दिशा की जानिब ले जाकर उसे कामयाब बनाता है। अब उस दिशा पे, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। उस रास्ते पे अगर कहीं दुश्वारी आती है, कहीं परेशानी आती है, कहीं कन्फ्यूज़न आता है, तो हम यहाँ मौजूद हैं। आप 24/7 कभी भी किसी भी लम्हे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपको जब भी ज़रूरत हो मैं अवेलेबल हूँ।